Hello students, welcome to the new video lecture on the topic dimensional analysis. It is a part of the units and measurement, and in a previous video lecture we discussed about the how this units of the fundamental quantities defined, and we learned about the derived units also, angles, and then how these units are defined. In the second video lecture we discuss about the measurement of the length using the some indirect methods for the smaller object like a size of the molecule, as well as bigger objects, larger distance like a distance of the planets and earth. Then in the next video lecture again we discuss the numericals which is given in the textbooks related to the length, and in this video lecture we are discussing about the dimensional analysis. Children, एक बात ध्यान रखो, बहुत कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर रहो, और ये सिलेबस कोई रिपीट नहीं होने वाला, क्योंकि almost 25% of the academic year we are passing this time and you are missing the lecture. अगर तुम लोग लेक्चर मिस कर रहे हैं तो ये कोई रिपीट नहीं होने वाला, तो ध्यान रखो, इसको पढ़ते रहो और रेगुलर क्लासेस अटेंड करो. किसी का अगर कोई वीडियो मिस हो गया तो वो प्ले लिस्ट में जाकर जो रिकॉर्डेड वीडियो है, जो अपलोडेड है, उसको देख सकते हैं. और जब वीडियो को क्लिक करते तो तुम डायरेक्ट वीडियो देखने से बेटर तुम लिंक को क्लिक करो और लिंक यूट्यूब में जो ओपन हो जाएगा उसको देखो, तो तुम्हें बेटर क्वालिटी ऑफ द वीडियो मिलेगा और जो लिखा है वो क्लियर दिखाई देगा. तुम्हें अगर तो भी नहीं दिखता तो तुम सेटिंग में थोड़ा सा जाकर 360 क्वालिटी या 480 क्वालिटी में देखना है. 140 क्वालिटी में देखेंगे तो तुम्हें वो जो हैंड राइटिंग है वो ब्लर्ड इमेज जैसे दिखेगा. तो थोड़ा सा वो ध्यान रखो. आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस. तो व्हाट इज द डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशनल मीन्स it is a physical quantity which are the powers of the fundamental quantities are raised and to represent the physical quantity. कोई भी physical quantity उसका representation in terms of the basic fundamental quantities length, mass, time. या यम अगर यूज करते तो ये मास के लिए है, मास, लेंथ और टाइम. और इसके अलावा ये तीन हो गए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में. और क्वांटिटीज आएगा कौन सा, जैसे इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी है, करंट है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो भी यूज करेगा. लेकिन मोस्ट ऑफ दिस बेसिक 3 आर fundamental quantities which use to the dimension is the physical quantity are the powers of the fundamental quantity. These 3 fundamental quantities powers, rest powers are raised to represent the physical quantity. This known as a dimension. For example, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ. हमें चाहिए velocity. This is the velocity is a term. क्या चाहिए velocity के लिए? This is the हम लिखते हैं इसको displacement डिवाइड बाई वेलोसिटी टर्म आता है डिवाइड बाई टाइम. डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम. अगर ये डिस्प्लेसमेंट टर्म है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, लेंथ, और टाइम के लिए टी, तो इसका डायमेंशन आएगा. कैसे लिखेंगे डायमेंशन? दे यम, दिस वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ यम, इसलिए यम रेस्ट 0, एल रेस्ट कितना है पावर इसका 1, और टी ये यहाँ 1 है, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, टी रेस्ट टू -1 हो जाएगा. अब देखो, द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स of the fundamental quantity, length, mass, time. These are the fundamental quantity and their power is raised to represent the physical quantity. कौन सा physical quantity represent किया? velocity को represent किया.
So इसी तरीके से all the physical quantities are represented in terms of the fundamental quantities by raising their powers, and it is written in this bracket, this known as a this rectangle bracket, or written in terms of the raising the powers of the fundamental quantities, this known as a dimension. And it is a very important article in terms of the exam point of view, yeah, competitive exam point of view. Dimension of the some physical quantities they ask in the exams to write, or in this class we are discussing how to write the dimension of the physical quantities. The equation which is represented by the physical quantity in terms of the fundamental quantities, units of the length, mass, time is called as a dimensional equation. इसी को dimensional equation बताए, it is length, mass, time के फॉर्म में लिखा. According to the principle of the homogeneity, the physical equation will be dimensionally correct if dimension of all the terms in all the terms occurring both side of the equation are the same. जैसे ये इक्वेशन है v square equal to u square plus 2as. अगर ये इक्वेशन दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए. इसका डायमेंशन प्लस दिस क्वांटिटी का डायमेंशन प्लस दिस क्वांटिटी का डायमेंशन, ये सब का तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए. देन दिस इक्वेशन इज ए dimensionally correct equation is a valid. In this way it is a use. तो चलो कुछ क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखते हैं, मैंने अभी यहाँ लिखा था. हम लिखते हैं इसको स्पीड, पहले क्वांटिटी यूज करते हैं. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ये फॉर्मूला हमें पता है. तो ये डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ, और टाइम के लिए टी यूज करते हैं. तो मास का स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एम रेस्ट टू 0, एल रेस्ट टू कितना 1, टी रेस्ट टू -1. तो ये हो गया डायमेंशन, इट इज रिटन इन दिस ब्रैकेट. ये हो गया वन फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन, हाउ टू राइट द डायमेंशन. दूसरा फिजिकल क्वांटिटी मैं लेता हूँ फोर्स. दिस इज द फोर्स इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. मास के लिए क्या यूज करें, ओके पहले हम एक्सेलरेशन का देखते हैं. यहाँ एक्सेलरेशन लिखते हैं. एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम. तो वेलोसिटी का क्या डायमेंशन है, हमने पहले ही लिखा है, एम रेस्ट टू 0, एल रेस्ट टू 1, टी रेस्ट टू -1, और ये ब्रैकेट, और ये टाइम का आएगा टी. तो इसको ठीक से लिखते तो क्या बनेगा, एम रेस्ट 0, एल रेस्ट 1, और ये टी ऊपर जाएगा तो फिर एक माइनस होगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ऊपर जाएगा माइनस, और ये माइनस और माइनस होगा, टी रेस्ट टू -2. ये हो गया डायमेंशन ऑफ ए एक्सेलरेशन. और मास के लिए, मास का क्या होगा, एम रेस्ट टू 0 मास का, और एक्सेलरेशन का ये एम रेस्ट टू 0, एल रेस्ट टू 1, और टी रेस्ट टू -2. अगर इंडाइसिस में बेस सेम है तो रेस्ट पावर ऐड हो जाता है. इसी तरीके से यहाँ 0 + 0 हो जाएगा 0, और एल रेस्ट टू 1, टी रेस्ट टू -2. अगर टी एम रेस्ट टू 0 पावर है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन 0 इसका मतलब दैट क्वांटिटी फोर्स इज ए, ओके सॉरी मैंने यहाँ गलती लिखा. एम यह में एम रेस्ट क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ भी एम रेस्ट क्या आएगा 1. फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द mass and acceleration. So dimension of the force is a m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2. तो यह हो गया फोर्स का यूनिट. अगर किसी क्वांटिटी अगर 0 आता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास, इसे इंडिकेट द 0 क्वांटिटी. चलो वन मोर क्वांटिटी समझा, तो दूसरा क्वांटिटी लेंगे प्रेशर. दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी. प्रेशर इज ए फोर्स डिवाइड बाई क्या फॉर्मूला है, एरिया. सो फोर्स का डायमेंशन हमने यहाँ लिखा, अगर पता नहीं है तो भी तुम
फॉर्मूला पता है तो उससे डायमेंशन लिख सकते हैं। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए फोर्स, जो मैंने यहाँ करके रखा है वो इस यहाँ लिया। और एरिया का मतलब है लेंथ इंटू ब्रेड, या लेंथ इंटू लेंथ स्क्वायर है तो लेंथ इंटू लेंथ, तो ये लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या बच जाएगा, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो m⁻1 l⁻1 t⁻², डिवाइड बाई ये l⁻²। अगर इसको देखेंगे ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m⁻1 यल का क्या होगा, ये प्लस है या माइनस, सो 1 -2 और t⁻²। अगर इसको डायमेंशन लिखेंगे तो m⁻1 l⁻−1 t⁻², तो इस तरीके से डायमेंशन ये प्रेशर का आ गया। और दूसरा क्वांटिटी, चलो मोमेंटम लिखते हैं। मोमेंटम, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू क्या आता है, v, मतलब मास इंटू द वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m⁻1 और वेलोसिटी का l⁻1 t⁻⁻1, यहाँ लिखा है मैंने, स्पीड या वेलोसिटी का सेम रहता है। तो यह हो गया किसका, मोमेंटम के लिए डायमेंशन। इसी तरीके से एक फिजिकल क्वांटिटी में समझा रहा हूँ इसको। दिस इज आल्सो यूज टू राइट द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट। जो कांस्टेंट टर्म है तो उसका डायमेंशन भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे द फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट m1 एंड m2, और डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस। दिस इज द स्क्वायर ऑफ ए सेपरेशन डिस्टेंस। अगर हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिखना है तो जी इक्वल टू क्या आएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई, क्या लिखूँ मैं, m1 m2। अगर ये टर्म का हमें डायमेंशन लिखना है, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जी होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर यूनिट लिखेंगे तो ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये मास लिखेंगे kg का स्क्वायर, के m1 m2 है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन इसका डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन लिखेंगे तो इसको मैं इसका अगर डायमेंशन लिखेंगे तो क्या कैसा आएगा, देखो इसका डायमेंशन लिखते हैं किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो फोर्स के लिए क्या आप लिखते हैं, फोर्स के लिए मास इनटू द एक्सेलरेशन। तो फोर्स का मैंने यहाँ लिखा है वो इसी तरीके से, यहाँ फोर्स का लिखा मैंने m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2, ये फोर्स का। आर क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे है, लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, और उसका स्क्वायर है तो ये l⁻2। उसके बाद m1 m2 दोनों क्या है, मास है, तो मास के लिए क्या रखें, m का स्क्वायर हो जाएगा, 2 है। अब यहाँ देखो ये एक m⁻2, ये 1 हो गया, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये -2 बनेगा। और यल का कितना टर्म है, इंडाइसिस में बेस सेम है तो हम दिस पावर का क्या करते हैं, ऐड। तो ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 2, और ये t का कितना है, -2। अगर इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, डायमेंशन ऐसा मेंशन करते हैं, m⁻1 यल का क्यूब हो गया, l⁻3 t⁻2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द कौन सा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यह हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। सो द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जिस फंडामेंटल फॉर्मूला, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके जो क्वांटिटीज बनता है, इसका डायमेंशन हम फॉर्मूले पता है तो हम इसको डायमेंशन लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि डायमेंशन ऑफ वन मार्क्स तो रहता है, राइट द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी। एक द फिजिकल क्वांटिटी पूछेंगे या कांस्टेंट भी पूछ सकते हैं, तो इसका नॉलेज होना चाहिए। और सभी जितना फिजिक्स में अभी 11th और 12th में टर्म्स आएगा, या फिजिकल क्वांटिटीज आएगा, कांस्टेंट्स आएगा,
सबका डायमेंशन हमें लिखना पड़ेगा आगे चल के ये 2 साल के टाइम में। तो ये टाइम क्वांटिटी को ध्यान रखो और ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और चलो नेक्स्ट कुछ क्वांटिटीज का दिखते हैं टेबल से कि कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन। अब एरिया है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब आएगा। ये वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑन द किससे, वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास एंड टाइम, तो वो ओनली एल। वेलोसिटी का लिखा, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी का कैसे लिखेंगे, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का लिखो तो ये क्वांटिटी बन जाएगा। पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम, तो वो वर्क का यहाँ से कैसे किया ऐसा और टाइम लगाओ तो हो जाएगा। प्रेशर और स्ट्रेस हमने बताया, लीनियर मोमेंटम या इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू याम भी होता है तो कैसे लिखता है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया लेंथ हो गया, 3 लेंथ, हाइट ब्रेड्थ और लेंथ, इसके लिए एल क्यूब आ गया इसलिए यहाँ एल क्यूब आ गया। स्ट्रेन, मॉलिक्यूलर इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात थी तो ये यहाँ लिखा हुआ है जो हमने पहले समझाया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आता है। तो इसी तरीके से ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैटेंट हीट है, स्पेसिफिक हीट है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सभी का डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे एंगल्स है उसका डायमेंशन, दे आर डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज क्या है डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो टेक्स्ट बुक में भी एक टेबल दिया, टेबल में बहुत सारे क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखा है और ये इस साइड में इसकी यूनिट्स लिखे हैं। तो इसका थोड़ा पढ़ाई करो, ध्यान दो, तो प्रिपरेशन करते हैं तो इसके ऊपर ध्यान देना। चलो हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। इसका डायमेंशनल एनालिसिस के यूज क्या है। There are the three main uses in the dimensional analysis: to convert the physical quantities from one system of unit into the another system। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर फिजिकल क्वांटिटी को करना है तो इसको यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं देखो, अगर इसको हम देखेंगे एक क्वांटिटी से दूसरा क्वांटिटी में यूज करने के लिए, जैसे हमें यहाँ पता है कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मैनी, यहाँ कितना हाउ मैनी सेंटीमीटर। तो ये नंबर ऑफ नंबर ऑफ सेंटीमीटर इन 1 मीटर, तो ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है मीटर और दूसरा सिस्टम यूनिट है ये SI है और ये CGS। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्शन के लिए डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं। जैसे कि ये क्वांटिटी हो गया N1 और ये सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया कि कौन सा यम, बेसिक टर्म में लिख रहा हूँ बेसिक यूनिट के फॉर्म में m⁻1 और m⁻A, यहाँ m⁻B, m⁻C, ये इसका यूनिट और ये क्वांटिटी यहाँ लिखा इक्वल टू दूसरा क्वांटिटी N2 और इसका यूनिट इन टर्म्स ऑफ द इसमें लिखेंगे CGS यूनिट में m⁻A, l⁻B और t⁻C इस टर्म में। तो ये समझ में आया कि फर्स्ट टर्म कैसा लिखा है। अब हम एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम है और ये कौन सा है CGS है। तो इसमें जो क्वांटिटी है कितना क्वांटिटी 1, N1 उसके लिए लिखा, यूनिट का फॉर्म इस MLT के फॉर्म में लिखा और यहाँ CGS यूनिट है N2 तो ML और ये C के फॉर्म में लिखा। अगर हमें ये पता है 1 मीटर इक्वल टू जैसे 1 मीटर N1 पता है, हमें क्या फाइंड करना है N2, व्हाट इज द N2, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये डायमेंशनल मेथड से करते हैं। यही फॉर्मूला यहाँ लिखा है, दिस इज N2 इक्वल टू N1, यहाँ से N1 और इन ब्रैकेट दिस इज m⁻A और यहाँ लिखा है m⁻, ओके, ये यहाँ ये M1 है, L1 है और T1, यहाँ M2, L2 और T2। तो ये यहाँ डिवाइड आएगा तो क्या आएगा बोलो, दिस इज N2 फाइंड करना है, N2 फाइंड करना है तो ये आएगा M1 डिवाइड बाई M2 रेस टू
तो इसका पावर देखो, इसका पावर आएगा, दोबारा लिख रहा हूँ मैं टर्म को सभी। दूसरा दोबारा लिखेंगे इसको। हाँ, तो ये दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको। एसआई यूनिट में दोबारा समझ लो, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ये एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। तो एसआई यूनिट में अगर मीटर का हमने लिया तो दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये पता है। लेकिन कई क्वांटिटी का ये वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्वांटिटी को n1 बोलेंगे, और इसका ये क्वांटिटी है, ये यूनिट है। ये यूनिट हर बार फंडामेंटल नहीं रहेगा, मैंने यहाँ फंडामेंटल लिया, लेकिन दूसरे के लिए अलग रहेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे m1 l1 और ये t1, इसका पावर लिखेंगे a b और c। और इस टर्म के लिए n2 लिखेंगे, इसका पावर्स लिखेंगे m2 l2 और t2, इसका पावर लिखेंगे a b और c। हमें फाइंड करना n2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इज एक से कितना, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, n2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये टर्म यहाँ आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, m1 डिवाइड बाई दिस इज द m2, और ये रेस्ट पावर दोनों का सेम है, इसलिए मैंने ये लिखा। और यहाँ इंटू इसी तरीके से l1 डिवाइड बाई l2, और इसका पावर कितना है b, और यहाँ t1 डिवाइड बाई t2, और इसका पावर आएगा c। मतलब ये जो टर्म्स है ये यहाँ डिवाइड आ जाएगा, तो इसका इस तरीके से फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला बन गया कन्वर्शन ऑफ द यूनिट ऑफ द वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू द अनदर फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से ये कन्वर्शन का क्वांटिटी बन गया। जस्ट 1 मिनट। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल, कन्वर्ट द 1 जूल इनटू द इक्विवेलेंट टू द आर्क। जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसका यूनिट है, ओके, जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किसका यूनिट है, एनर्जी। और ये दिस इज द जूल is a SI unit of a energy। और क्या है, आर्ग इज ए CGS यूनिट, ये कौन सा है, CGS यूनिट। तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला यूज करना है हमें, यहाँ पहले लिखते हैं SI क्वांटिटी 1, दिस इज द जूल इन SI, एंड दिस इज ए CGS, दिस इज ए 1 आर्ग, और यहाँ कितना आर्ग, दिस n2 आर्ग। तो हमें ये निकालना है 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी आर्ग, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में करना है। तो एनर्जी का यूनिट है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी सेम एज ए वर्क हमने बताया था, और वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये यूज करेंगे। फोर्स के लिए होता है ma, और डिस्प्लेसमेंट के लिए s, तो m रेस टू 1, ये वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन होता है, तो ये इसका डायमेंशन है 1 l रेस टू 1 t रेस टू -2, या दोबारा समझना है तो ये लिखेंगे m रेस टू 1 मास के लिए, एक्सेलरेशन का आता है क्या लिखेंगे, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और ये अगेन ये डिस्टेंस के लिए ये लेंथ का l। अब यहाँ देखो m रेस टू 1, और ये वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का है l रेस टू 1 t रेस टू -1, और ये डिवाइड बाई t, ये जो दिया है ये मैंने वेलोसिटी का लिखा, और ये l। तो सबका मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ m रेस टू 1 l रेस टू
ये एक और ये एक, l⁻², और ये t⁻1 है, ये ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो t⁻², यही एनर्जी का क्या हो गया, यही एनर्जी का डायमेंशन हो गया। तो इसमें हम ए बी सी के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है हमारे पास ये, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो हमने लिखा था n2 इक्वल टू m1 डिवाइड बाई m2 रेस टू a, L1 डिवाइड बाई L2 रेस टू b, और T1 डिवाइड बाई T2 रेस टू AC। ए का वैल्यू क्या आ गया, फिर इसका रेस टू पावर कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू -2। कहाँ से लिया पता है, ये जो वैल्यूज है m⁻1 t⁻, l⁻, ये रेस टू पावर, क्योंकि ये रेस टू पावर ए बी सी का वैल्यू हो गया। आप देखो ये SI सिस्टम में और CGS सिस्टम में दोनों क्वांटिटी का वैल्यू लिखते हैं। जैसे ही इसका यहाँ मास आएगा तो SI सिस्टम में मास कितना होता है 1 kg, ये यूनिट है, और इसका अगर कन्वर्ट किया तो होगा 1000 ग्राम। और यहाँ मास इक्वल टू CGS, मतलब इन्हें ग्राम होता है 1 ग्राम। लेंथ क्या होता है, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। अगर इसको CGS में कन्वर्ट करके लिखा हूँ मैं तो ये सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। टाइम कैसा होता है सेकंड में, तो इट इज इक्वल टू 1 सेकंड। इसी में लेंथ आएगा तो क्या आएगा 1 सेंटीमीटर, और टाइम आएगा 1 सेकंड। मतलब जो क्वांटिटी है लेंथ मास टाइम, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका मैंने SI सिस्टम में यूनिट लिखा kg, मीटर और सेकंड, और इसका कन्वर्शन मीटर में CGS में किया तो इतना आता है। CGS में लेंथ के लिए ग्राम होता है, और मास के लिए ग्राम होता है, लेंथ के लिए क्या होता है सेंटीमीटर, और टाइम के लिए ये यूनिट होता है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं। अब यहाँ देखें कि यहाँ देखो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो ये यहाँ आएगा, तो देखो अब हमें ये फॉर्मूला में लिखना है n2 इक्वल टू n1। n1 कितना है, n1 का वैल्यू है इक्वल टू 1। हमें 1 जूल का, दिस इज n1, ये 1 जूल का निकालना है, तो 1 n1 इक्वल टू 1, और दिस इज द m1 डिवाइड बाई m2 रेस टू a इंटू L1 डिवाइड बाई L2 रेस टू b, और T1 डिवाइड बाई T2 रेस टू c। तो n2 इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ m का वैल्यू, m1 का वैल्यू कितना है 1 kg है, दिस इज द 1 kg, और L2 कितना है, दिस इज द 1 ग्राम, और रेस्ट टू क्या हो गया इसका a का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ L1 कितना है, दिस इज 1 मीटर, और यहाँ 1 सेंटीमीटर, या और इसका वैल्यू 2, और t 1 और 1, और इसका 1। तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ये चीज को ग्राम में करेंगे तो 1000 क्या आएगा, ये ग्राम आएगा, और डिवाइड बाई दिस इज द 1 ग्राम, और रेस्ट कितना है, दिस इज द 1, और यहाँ 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का कितना है 100 सेंटीमीटर, ये डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर रेस्ट 2, और ये 1 रेस्ट टू कितना है -2 है, यहाँ कितना है -2। अब यहाँ देखो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सो n2 इक्वल टू कितना बचा, ये 10⁻3, और यहाँ कितना है उसका 10⁻2, और उसका ये स्क्वायर है, और ये 1⁻10, अगर इसको 2 बार भी गुना करेंगे या नीचे लिखेंगे तो भी कितना आएगा, ये 1 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको ऐसे लिखते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका, तो n2 इक्वल टू 10⁻, कितना हो गया 3 इंटू 10⁻4, अगर ये स्क्वायर करते तो 4 हो जाएगा, और अगर रेस्ट पावर 2 है तो यहाँ डिवाइड बाई 1 का नीचे जाने से 2, ये 2 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो n2 इक्वल टू कितना आएगा, n2 इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग।
अगर ठीक से समझ में आए दोबारा पॉज करो, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैं तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते ही एग्ज़ाम में भी, अपना स्कूल एग्ज़ाम में, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ो। तो मैंने और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरा अगर समझेंगे तो ये क्वेश्चन और एक समझाता हूँ। तो ये कन्वर्ट द यूनिट, शायद वो वीडियो ये नेक्स्ट पीपीटी इसमें होगा, ये भी नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं है। ओके, जाते जाते होमवर्क में मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। तो दूसरा यूनिट इसका, दूसरा यूज ऑफ ए टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल इक्वेशन, दिस इज द यूज ऑफ ए डायमेंशन। तो फिजिकल इक्वेशन मैंने एक इक्वेशन लिया, सेकंड लॉ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ई टी स्क्वायर, ये हमने 9th में डिराइव किया और सब लोग इसलिए फैमिलियर है। तो ये बराबर है क्या नहीं, ये हम डायमेंशन जब बताते हैं ये तो पता है, लेकिन अगर ऐसा कोई फिजिकल रिलेशन हमें मिला और उसको चेक, वो करेक्ट है कि नहीं वो देखना है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। हर एक का डायमेंशन लिखेंगे, इसका मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ, यहाँ क्या आएगा, ये यस मतलब डिस्टेंस है, यल रेस टू क्या आएगा 1, और दिस डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन द लेंथ एंड मास, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए मास का टर्म की यहाँ कितना एम रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो आएगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। और इसका डायमेंशन देखो यू टी, यू मतलब क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन, इस तरीके से लिखा। और ये u का डायमेंशन हो गया कौन सा, ये टर्म का u का। अब t का यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसका t का t रेस टू वन हो जाएगा डायमेंशन, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू, अगर नहीं पता तो लिखो इसे। और टी स्क्वायर यहाँ, टी का मतलब टाइम, टाइम का क्या आएगा स्क्वायर है, इसीलिए टी रेस टू वन होगा टाइम का, और ये स्क्वायर यानी टू हो जाएगा। अब यहाँ देखो डायमेंशन ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी कितना, एल रेस टू वन इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ ये दोनों का ऐड करो तो ये एल रेस टू वन और टी रेस टू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, यहाँ ये क्वांटिटी का, प्लस ये वन बाई टू, और ये एल रेस टू वन और टी रेस टू माइनस टू प्लस टू हो जाएगा। तो ये एल रेस टू क्या आ जाएगा वन इक्वल टू ये एल रेस टू वन, टी रेस टू क्या हो जाएगा जीरो, जीरो मतलब कितना होता है वन, किसी भी एक्स रेस टू जीरो, ये तो एक्स रेस टू जीरो है तो उसका वैल्यू कितना है वन, इसी तरीके टी रेस टू जीरो का वैल्यू वन हो जाएगा, प्लस वन बाई टू, और यल यहाँ भी टी रेस टू क्या आएगा जीरो, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन, यहाँ वन बाई टू आ गया, ये कांस्टेंट है। तो डायमेंशनल मेथड का ये डिसएडवांटेज है कि कांस्टेंट टर्म का कुछ वैल्यू यहाँ फाइंड नहीं कर सकते हैं, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ इट। बट डायमेंशन ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी और थर्ड क्वांटिटी, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ये सबका इक्वल है, इसीलिए ये रिलेशन फिजिकली और डायमेंशनली करेक्ट। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल इक्वेशन, दिस इज द यूज ऑफ ए डायमेंशन। चलो ये समझ में आया तो आसान है ये। तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तीसरा यूज इसका, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये फैक्टर्स ऑन विच दैट फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड, इट इज ए नोन। यहाँ लिखा है, हमने एक एग्जांपल लिया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये फोर्स एक्ट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल, एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, द फोर्स एक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस नोन एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हमें आगे आएगा। लेकिन यहाँ का अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है सर्कल में, तो ये एक फोर्स उसके सेंटर की तरफ लगता है, दिस नोन एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट डिपेंड्स ऑन, किसको कौन सा फैक्टर से डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन, एक हमें पता है मास के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा क्वांटिटी इसका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
और तीसरा क्वांटिटी इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस। सो मास के लिए यम, वेलोसिटी के v और रेडियस के लिए r, ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये अगर नॉन है तो हम फिजिकल रिलेशन उसका निकाल सकते हैं, मतलब इक्वेशन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है इक्वेशन एफ सी सेंटीमीटर वर्सेस एम वी स्क्वायर बाय आर, ये टर्म लिखा है, लेकिन सपोज इट इज अननोन है और हमें पता है कि कौन सा फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ ए this equation of that physical quantity. So the centripetal force Fc is a directly proportional to the, or it is depends on the mass, velocity and r. हमें पता नहीं इसलिए इसके लिखेंगे a, b और c। तो और f that c प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला, तो यहाँ मैं k लिखा हो, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का k, m रेस टू a, v रेस टू b और r रेस टू c। तो ये जो टर्म है, तो इसका ये जो रिलेशन है, रिलेशन मतलब इक्वेशन है, हमें ये इसको प्रूव करना है। इसीलिए हम इसका डायमेंशन लिखेंगे पहले, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का डायमेंशन लिखेंगे, और कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं लिख सकते, ये ड्रॉबैक है किसका, डायमेंशनल मेथड का। और तो इसका यहाँ डायमेंशन लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू द एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए यम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, तो यम इंटू वी डिवाइड बाई टी आएगा। और इसी को अगर लिखेंगे यम, वेलोसिटी को होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम वेलोसिटी का ये टी, लेंथ डिवाइड बाई टाइम या डिस्प्लेसमेंट, और 1 डिवाइड बाई ये टी एज इट इज। तो एफ सी दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका डायमेंशन लिखना है तो हम आएगा एम रेस टू 1, एल रेस टू 1, और टी, दो टी है तो टी इंटू टी हो गया 2t, तो टी रेस टू ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो टी रेस टू ये माइनस आएगा ये। तो इस साइड में जो डायमेंशन लिखना है कौन सा एफ सी का, तो ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ आएगा एम रेस टू 1, एल रेस टू 1, टी रेस टू -2, ये हो गया इक्वल टू, यह के थोड़ी टाइम के लिए हम इसको के इक्वल टू 1 लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये टर्म कौन सा है, ये मास है, तो हम मास के लिए क्या लिखेंगे, यम और रेस टू ये, और ये वेलोसिटी, ये मास का डायमेंशन हमने लिखा क्योंकि मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम, तो यहाँ नहीं दोनों टर्म आ गया। देन वेलोसिटी का लिखेंगे तो ये हो गया एल लेंथ डिवाइड बाई टी रेस टू क्या है, बी है। और तीसरा टर्म कौन सा है, रेडियस है, हम यहाँ कैपिटल आर यूज करेंगे। तो रेडियस मतलब क्या हो गया, लेंथ। रेडियस कैसे मेजर करते हैं, कौन से यूनिट में, तो लेंथ में करते हैं, तो ये एल रेस टू सी, तो एम रेस टू ए, एल रेस टू यहाँ बी हो जाएगा, और टी रेस टू ये ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ, इसका बी, ये टर्म का। उसके बाद यहाँ यल रेस टू क्या आएगा, सी, और ये सबको मैं कंबाइन कर रहा हूँ यहाँ इक्वल टू एम रेस टू ए, यल कितना है यहाँ सी है और यहाँ बी है, तो यल रेस टू बी प्लस सी आएगा, फिर रेस टू पावर उसका ऐड होता है, और ये टी रेस टू क्या हो जाएगा, टी रेस टू माइनस बी हो जाएगा, टी रेस टू माइनस बी। अगर समझने में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है, मैंने यहाँ ये लिखा कि ये टर्म अलग लिखा टी रेस टू बी, और ये दूसरा ब्रैकेट में लिखा है मैंने, डिवाइड नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, तो ये टी रेस टू माइनस बी बनेगा। अब इसका पावर इसके साथ कंपेयर करो, कितना लिखा है, एम रेस टू 1, एल रेस टू 1, टी रेस टू -2, एक एम का पावर, दोनों पावर कंपेयर करो ये दोनों का, तो ये इक्वल टू कितना आता है 1। देखो एम का पावर इसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से कंपेयर करो, यल का पावर यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, यल का पावर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा 1, और टी का कितना है -p इक्वल टू -2। देखो ये वाला, ये और
ये कंपेयर किया, तो हमें 3 वैल्यूज मिला। अब सी का वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें, तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा 2, दोनों साइड माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो सी का वैल्यू फाइंड करते हैं इससे, सी इक्वल टू 1 माइनस बी, तो 1, बी का वैल्यू 2, तो सी इज इक्वल टू आएगा -1। तो ये इसको दोबारा लिखते हैं यहाँ, जैसे एफ सी इक्वल टू के, यहाँ जो के है इसमें वैल्यू रखते हैं, एम रेस टू कितना कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 1, और जैसे बी रेस टू बी का वैल्यू कितना गया 2, और तीसरा वैल्यू आर रेस टू सी है, सी का कितना आया -1, इसका मतलब आर -1 ही नीचे जाना है, तो एफ सी दिस इक्वल टू के एम क्या आएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये फिजिकल रिलेशन जो यहाँ लिखा है ये पता नहीं था, तो हमने ये डायमेंशन मेथड से इसको डिराइव किया है। तो इस तरीके से ये पार्ट को भी ध्यान रखो, और इस तरीके से यूज ऑफ ए 3 यूजेस ऑफ ए डायमेंशनल मेथड हमने पढ़े, और कुछ एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में दिया है, या तुम्हारे पास अगर कुछ रेफरेंस बुक है किसी शब्द इसका, तो उससे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ये अच्छे तरह से समझ लो। तो ये 3 यूज पढ़ा, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्या फायदे क्या है इसका, डायमेंशनल इक्वेशन आर यूज टू वैलिडेट द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। जो डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल मेथड है टू वैलिडेट द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन को वही करना है। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ये इक्वेशन को हम वैलिडेट करना है बराबर है कि नहीं देखना है, तो इसका डायमेंशन फर्स्ट टर्म का ये डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन अगर सेम है तो दिस इक्वेशन इज ए वैलिडेट। डायमेंशनल इक्वेशन इज यूज टू डिराइव द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने यहाँ पढ़ा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, दिस इज द सेंट्रीपिटल का फोर्स का रिलेशन। अगर तुम्हें देखना है तो इसको देखते, काइनेटिक एनर्जी हमें फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी, ये दो टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रिलेशन डायमेंशन मेथड से डिराइव करो, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा, दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ द डायमेंशनल मेथड। इसको अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो वो इसमें मेंशन नहीं है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द डायमेंशनल मेथड, वी कैनॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट बाय यूजिंग दिस मेथड। देन दूसरा क्या, डायमेंशनल इक्वेशन आर यूज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अनदर, जैसे 1 जूल इनटू इक्विवेलेंट टू द अर्ग, ये हमने यूज किया, तो ये मेथड यूज करते हैं, दिस इज द यूज। डायमेंशनल इक्वेशन आर यूज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट, फिजिकल कांस्टेंट है, जैसे जी का है, जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैंने शुरुआती में बताया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फाइंड करना है, तो जी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जी इक्वल टू क्या आएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। एफ का क्या होता है, एफ हो गया दिस एफ का डायमेंशन क्या आएगा, एफ का हमने अभी पता है मास इंटू द एक्सेलरेशन, मास के लिए एम, एक्सेलरेशन होता है लेंथ का, और ये टाइम का -2, ये डायमेंशन हो गया किसका, ये फोर्स का। तो यहाँ फोर्स का लिखेंगे, फिर फोर्स का हो गया m⁻1 l⁻1 t⁻², आर क्या है लेंथ है, तो यहाँ लेंथ का स्क्वायर, और केजी मास इंटू मास m1 m2, तो ये m का स्क्वायर, ये m ऊपर जाएगा तो m⁻² कितना होगा -1, और l और ये क्या होगा, ये l स्क्वायर और ये l है यहाँ l⁻1 l⁻2, तो कितना l⁻, यहाँ 3 हो जाएगा, और t⁻²। तो ये हो गया किसका डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो इस तरीके से ए भी है किसका यूज है। चलो आगे देखते हैं। देन लिमिटेशन ऑफ दैट, व्हाट आर द लिमिटेशन, मतलब सम ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन इसके डायमेंशनल मेथड। द डायमेंशनल एनालिसिस हैज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे हमने के का वैल्यू लिखा, या हाफ या म्यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अगर ये फॉर्मूला है तो ये जो हाफ है ये हम नहीं फाइंड कर सकते, दिस नॉट ए कांस्टेंट, हाफ या म्यू स्क्वायर।
तो ये जो वैल्यू जो कॉन्स्टेंट्स वी कैन नॉट फाइंड यूजिंग द डायमेंशनल मेथड, दिस इज द डिसएडवांटेज या लिमिटेशन। फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑन द ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, यहाँ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, अगर किसी का फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड है किससे, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन जैसे साइन कॉस टैन है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ई रेस टू एल या एक्स स्क्वायर है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, या ऐसे जो ट्रिगोनोमेट्रिक साइन कॉस टैन इसमें और एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, तो उसके लिए ये मेथड यूज नहीं कर सकते। There's some cases it is difficult to gauge the factor while deriving the relation connecting to two or more physical quantities. In some cases it is difficult to gauge the factors while deriving the relation connecting two or more, ज़्यादा physical quantity होगा। आपने ये 3 का देखा था यहाँ, या म्यू स्क्वायर और डिवाइड बाय, अगर 3 से ज़्यादा है तो ये करना मुश्किल होगा, क्योंकि हम ये एम रेस टू 1 टी रेस 3 बेसिक क्वांटिटी लेकर ही करते हैं, या तो ये मुश्किल है। फिर मेथड कैनॉट बी यूज टू इक्वेशन कंटेनिंग द 2 और मोर वेरिएबल्स विद द सेम डायमेंशन, अगर मेथड यूज नहीं कर सकते अगर इसमें 2 और मोर वेरिएबल्स है और सेम डायमेंशन है। कैनॉट बी यूज फॉर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द मोर देन 3 क्वांटिटी, अगर 3 वेरिएबल से ज़्यादा क्वांटिटी से डिपेंड करती फिजिकल क्वांटिटी तो उसका फिजिकल रिलेशन डिराइव करना नहीं कर सकते। दिस मेथड कैनॉट बी यूज फॉर द फिजिकल क्वांटिटी कंटेंट ए मोर देन वन टर्म, से द सम और डिफरेंस ऑफ द टर्म, अलग अलग टर्म अगर सम और डिफरेंस हो रहा है, ऐड हो रहा है या सपरेट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में डायमेंशनल मेथड नहीं यूज कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ये अपना वीडियो देख के अपना नोट्स ठीक से मेंटेन करिए, ये लेसन दोबारा रिपीट नहीं होगा फिर से एक बार क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तो रेगुलर रहो और जो चल रहा है उसको नोट करो, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में लिखो, हम उसको रिपीट करेंगे। लेकिन तुम सोच रहे होंगे स्कूल में जाके ये सब कुछ करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, इतना सिलेबस तुम्हारा स्किप हो जाएगा। तो ध्यान रख के नोट्स बनाओ और लिखो, कॉपी मेंटेन करो ठीक से और पढ़ाई करते रहो। अगर तुम बहुत बड़ा सपना लेके आगे 11th क्लास पढ़ रहे, 12th क्लास पढ़ रहे, तो मेहनत भी उतना ही ज़रूरत है। तो इसके साथ रेगुलर रहो और पढ़ाई करो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।